Assalamu alaikum everyone. Let's continue with October November 2019 variance 11. Question number 1. The diagram shows the Boltzmann distribution of energies in a gas. The gas undergoes a reaction with an activation energy. The P of the distribution is labeled P. और ये जो P है ये basically most probable energy को represent करता है according to the lecture. The same reaction is carried out in the presence of a catalyst, which statement is correct. Now the same reaction is carried out in the presence of catalyst. जब catalyst use होता है तो obviously बेटा जो आपका sketch है shape है ग्राफ की वो तो change नहीं होती, सिर्फ activation energy decrease होती है, right? So shape of the graph doesn't change, but the activation energy decreases. यानी अगर activation energy without catalyst इस जगह पर draw की हुई है हमने, तो obviously with catalyst activation energy somewhere around यहाँ आ जाएगी आपके पास, तो ये fraction बढ़ जाएंगे जो कि chemical reaction कर लेंगे, ठीक है? तो हम start करते हैं one by one. The peak P is at lower height, never, because shape of the graph doesn't change, so A wrong. Similarly, the peak P is at a lower height, again the shape of the graph doesn't change, so B be wrong. The peak P remains at the same height, that's right. And the position of PA moves towards left, that's also right. The position of PA यहाँ पर आ जाएगी आपके पास. With catalyst activation energy ये होगी और मैं इसको ACP कर देता हूँ यानी catalyst के साथ. Activation energy with catalyst. ये fraction बढ़ गया आपके पास. The right answer is C. Diamond is a pure form of carbon. The mass of diamond can be measured in carats. 1 carat is 0.2 gram of carbon. Which expression gives the number of carats that contain 6.02 times 10 to the power 23 carbon atoms? Guys, you should know that 1 mole of carbon equals to 12 gram, and 12 gram is equals to 6.02 times 10 to the power 23 atoms. Right? And this is the air of carbon. So अगर आपके पास 0.2 ग्राम ऑफ कैरेट है तो बताइए कितना होगा? ठीक है जी. बल्कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको. ये तो आप रखिए इस तरह से. आप बोलिए 1 कैरेट equals to 0.2 gram. If we have 12 gram of carbon, which is equals to this much atoms, so बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा 12 divided by 0.2. The right answer is C. ठीक है? Question number 3. Which molecule or ion contain the smallest bond angle? आप जानते हैं एल्कीन, इथीन. इथीन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. इस कार्बन एटम के अंदर 109.5 डिग्री होगा और इस कार्बन एटम के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से 120 डिग्री एंगल होगा. यहाँ पर नाइट्रोजन 109.5 डिग्री होगा और अमोनिया में 107 डिग्री होगा. तो अगर तमाम ऑप्शंस को देखा जाए तो सबसे कम जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया में है, which is why ammonia is the right answer. Next, 4 compounds are shown. Ethene है, ethanol है, ethanol है, ethanoic acid है. How many of these compounds have an odd number of sigma bond? Have an odd number of sigma bond. देखिए अगर मैं C2H4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? 5. सही है. C2H5OH लूं तो यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं.
इथेनॉल लेते हैं, तो इथेनॉल को हम इस तरह से लिख लेते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड आ गए, राइट। इथेनॉइक एसिड देख लेते हैं, CH3 COOH, ये जगह 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऑड नंबर सिर्फ 2 मिले आपको, विच इज व्हाई बी इज द राइट आंसर। Ethanol, ethanol and methoxymethane are three organic compounds. Which compound has the highest boiling point, and what is the interaction that causes this boiling point to be highest? आप सब जानते हैं इसमें permanent dipole forces हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें permanent dipole forces भी हैं, और आप जानते हैं hydrogen bonding is stronger than permanent dipole forces, and permanent dipole forces is stronger than induced dipole forces, right? तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होगा जिसकी फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी स्ट्रॉन्गर, तो आंसर कुड बी ए बी और सी, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। आप जानते हैं इथेनॉल के अंदर परमानेंट डायपोल फोर्सेस हैं, इसलिए, और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, विच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच स्पीशीज, दैट्स वेरी सिंपल फॉर्म है। इस H2S में सल्फर इज -2, SO2 में सल्फर इज +4, और H2SO3 में सल्फर इज अगेन +4, तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, the following data are needed in this question. Delta HF की वैल्यूज गिवन है आपको, तो कह रहे हैं हाइड्रोजीन reacts with dinitrogen tetroxide to form nitrogen gas and water vapor, ये इक्वेशन आ गई। कह रहे हैं व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, तो बेटा मुझे फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, इसका मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा साइकिल। अच्छा, N2H4 हमारे पास दिया हुआ है 50.6, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले, बिकॉज वी हैव 2 मोल्स इन द इक्वेशन। N2O4 की एनर्जी है बेटा 9.2, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, और वाटर की एनर्जी है आपके पास -241.8, सिंस वी हैव 4 मोल्स ऑफ वाटर इन द इक्वेशन, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 50.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9.2 माइनस -241.8 इंटू 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है -1077.6 kilojoules per mole, राइट आंसर इज ए। फिर वो पूछ रहे हैं सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन गिविंग आउट हीट एनर्जी and forming the compound Na2O. The equation for this reaction is shown. Which statement about the reaction is correct? Delta H for the reaction is equal to twice the bond energy of NO bond. Absolutely incorrect, because आप जानते हैं कि सोडियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसकी बॉन्ड एनर्जी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन इज रॉन्ग। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव, जब वो कह रहे हैं कि हीट एनर्जी इज गिवन आउट, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, व्हिच मींस बी भी रॉन्ग। फिर वो कह रहे हैं द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ सोडियम, तो याद रखिएगा कंबस्शन इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम शुड बी बर्न, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2 मोल्स ऑफ सोडियम बर्न हो रहे हैं, इसलिए सी भी गलत, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। फिर वो कह रहे हैं इन द केमिकल इक्वेशन W x y and z are all whole numbers, when the equation is balanced what are W x and y? So we have two things in this,
एक है आपके पास ClO3 नेगेटिव, इट इज कन्वर्टिंग इनटू ClO4 नेगेटिव। मैं आयन इलेक्ट्रॉन रूल्स अप्लाई करता हूँ। वी हैव 4 ऑक्सीजन हियर, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल अप्लाई करूंगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस लूंगा। सिंस वी हैव ओवरऑल -1 चार्ज, तो यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज -1 हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करूंगा। MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू MnO2। ऑब्वियसली यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल लूंगा। प्रोडक्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन आयंस लेंगे, और चार्ज 0 करने के लिए हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। ऑब्वियसली मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। चेक करने पे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये 6 वाटर 8 वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 वाटर 4 वाटर मॉलिक्यूल से कैंसिल हो रहे हैं। तो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 3ClO3 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस। अब देखें, ये आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है W, ये आपको एग्जामिनर ने क्या कहा है X, और ये एग्जामिनर ने आपको क्या कहा है Y। तो 3 2 2 कहाँ लिखा हुआ है? 3 2 2 D में लिखा है। D is going to be the right answer. Question number 10. Two compounds X and Y react to produce compound Z in the reaction is reversible. ये equation आ गई, and obviously ये reaction exothermic है क्योंकि 2 reactants आपस में मिलकर एक product बना रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं when X and Y are mixed together in a closed system, dynamic equilibrium is gradually established. Which graph could represent the change in the rate of the forward and reverse reaction over the period of time? आप जानते हैं कि जब भी dynamic equilibrium होता है, rate of forward reaction is always equals to rate of backward reaction. तो rate of forward rate equals to rate of backward कहाँ पर है? वो सिर्फ और सिर्फ C में है, which is why C is the right answer. ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई है, आपके पास रजिस्टर में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। फिर वो आपसे कह रहे हैं द रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिवर्सिबल। Kc की वैल्यू बेटा हमें गिवन है, इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 1000 केल्विन सल्फर डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज 0.2 and the oxygen concentration is 0.1 mole per dm2. What is the sulfur dioxide concentration? तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। concentration of sulfur dioxide power square over concentration of sulfur dioxide power square, क्योंकि 2 moles equations में, and concentration of oxygen. Kc की वैल्यू हमें गिवन है 280 equals to सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.2 दी हुई है, तो हम उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है 0.1, तो हम उसको लिख लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 280 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर ले लेते हैं, इंटू 0.1 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 1.12। अब जाहिर सी बात है, मैं इस स्क्वायर को खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं अंडर रूट ले लूंगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 1.058 मोल पर dm2। ये सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ गई, तो आंसर इज गोइंग टू बी ए। Which oxide will cause an increase in pH? Increase in pH when added to water. ये इनकरेक्ट बिकॉज इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी इनकरेक्ट बिकॉज ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये भी इनकरेक्ट क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन इट विल डिसॉल्व इन वाटर टर्न गिव यू एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ pH2। तो pH इंक्रीज तो नहीं हो रही, pH तो डिक्रीज हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड की केस में, व्हिच इज व्हाई राइट आंसर इज ए। Question number 13, X, Y, and Z are consecutive elements in period 3.
consecutive elements in period 3 of the periodic table. Element Y has the highest first ionization energy and the lowest melting point of these three elements. Okay, what are the identities of X, Y and Z? अच्छा जी, 3 एलिमेंट्स हैं कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर की फॉर्म में, जिसमें से एलिमेंट Y की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इन तीनों में से। ठीक है जी, तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट भी है और आयनाइजेशन एनर्जी भी है। अच्छा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं और इन तमाम मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन आपको ये याद होगा कि एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैग्नीशियम से कम होती है। दैट मींस कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इसके ऊपर फिक्स नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सही है। सेम फॉर बी। बी इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम होती है और सिलिकॉन से भी कम होती है। तो वो हाईएस्ट कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से कम होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर डी। लेकिन ये तो मैंने ट्रायल एंड एरर की बेस पे कर लिया, लेकिन इसकी लॉजिकल रीजन हम आपको दे देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिलिकॉन को ले लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप 14 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में 2, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, फास्फोरस है आपके पास, एटॉमिक नंबर 15 है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, s ऑर्बिटल में 2 और p में 3 होंगे। सही है। उसके बाद आपके पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में 2, p में 4। तो आप नोट करें, ये जो फास्फोरस है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन से भी ज्यादा होगी और सल्फर से भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहा है, ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर रहा है। राइट, तो जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो कर गया आयनाइजेशन एनर्जी का। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने आपको कहा था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है ट्रेंड में क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। राइट, ये P4 में एग्जिस्ट करता है और ये S8 में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट होगा इन तीनों में। राइट, और इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। राइट, तो इन तीनों में से यानी सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो ये भी, और फिर वो ये भी कह रहे हैं एंड द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीस थ्री एलिमेंट, तो इन तीनों में से लोएस्ट किसका है, फास्फोरस का है। तो दैट्स हाउ वी कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। उसके बाद है, a 5 gram sample of an anhydrous group 2 metal nitrate loses 3.29 gram in mass when heated strongly. Which metal is present? Obviously मैं इस पैटर्न के तकरीबन 5 to 7 क्वेश्चंस करवा चुका हूं आपको, तो आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। तो मैं ट्रायल एंड एरर की बेस पे होगा, पहले हम ए यूज करेंगे, आंसर अगर आ जाएगा हमारे पास, आंसर ये टैली हो जाएगा तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं होगा तो फिर हम बी पे चले जाएंगे। बाय द वे बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब वो कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कैल्शियम नाइट्रेट का एमआर कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, देखिएगा जरा, मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट सबसे पहले डिटरमिन कर लेते हैं। 5 को डिवाइड कर दीजिए 164.08 से,
ठीक है, सो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 5 divided by 164.08, so it's going to be 0.0304 moles. ओके, आप जानते हैं कि जब कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों में मोलर रेशियो सेम होता है, चाहे आप 2 मोल की इक्वेशन यूज करें या 1 मोल की, तो मोलर रेशियो सेम होता है। तो जो मोल्स कैल्शियम नाइट्रेट के हैं वही एग्जैक्टली मोल्स किसके हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के हो जाएंगे, 0.0304 मोल्स बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो इन इक्वेशन। ठीक है जनाब, from these moles of oxide calcium oxide we can find the mass of calcium oxide। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोल है हमारे पास 0.0304 और कैल्शियम ऑक्साइड का एमआर होता है 56.1, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 56.1, ये हो जाएगा आपके पास 1.709 ग्राम, राइट। मैं क्या करता हूँ, लॉस इन मास कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास सैंपल का मास कितना था 5 ग्राम, उसमें से 1.709 मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड डिटरमिन कर लिया, तो बाकी जो है वो लॉस मास हो जाएगा विच इज 3.29 ग्राम, और ये वैल्यू एक्चुअली इस वैल्यू से टैली हो गई, इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है जनाब, फिर वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में solution P and Q each contain different group 2 ion at the same concentration. One contain magnesium ion and the other contain barium ion. तो आपके पास दो कैटाइंस हैं, एक आपके पास है मैग्नीशियम आयन और दूसरा आपके पास है बेरियम आयन। ठीक है जनाब, फिर वो आपसे कह रहे हैं टेस्ट आर कैरिड आउट इन द सेपरेट 5 cm³ सैंपल ऑफ P and Q। टेस्ट 1 cm³ of 1 mole per dm³ सोडियम सल्फेट। तो टेस्ट 1 में हमने क्या किया है, सोडियम सल्फेट रखा है, और फिर टेस्ट 2 के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है जी, आप जानते हैं बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ये सॉल्युबल होता है, इसका सॉल्यूशन बनेगा। जब आप मैग्नीशियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, राइट। और आप जानते हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, जबकि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, तो जाहिर सी बात है इसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है टेस्ट 1 में बेरियम सल्फेट के ज्यादा प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, राइट, और दूसरे वाले टेस्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ज्यादा प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहे हैं आपसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव डिफरेंट वोलेटिलिटीज। अगेन वोलेटिलिटी का क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। which row identifies more volatile of the two elements and give the correct explanation। मैंने पहले भी समझाया था, मैं आज फिर बता देता हूँ कि वोलेटिलिटी का ताल्लुक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर आपके पास ज्यादा होंगी तो वोलेटिलिटी कम होगी। हायर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई क्लोरीन की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जब क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्सेस कम होंगी यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, और अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो जाहिर सी बात है उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो अब रीजन पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर ग्रेटर इन ब्रोमीन देन दे आर इन क्लोरीन। दैट्स राइट, क्योंकि क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जाहिर सी बात है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ वैन वाल फोर्सेस भी कम। तो राइट आंसर इज सी। Question number 17. Sodium azide is dissolved in water.
acidified silver nitrate is added to this solution and a white precipitates formed. Aqueous ammonia is then added to the white precipitate. The azide ion has a -1 charge, by the way, ये note करने की बात है. And the second thing is has a similar chemical properties to the chloride ions. तो अगर क्लोराइड एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब जो एजाइड आयन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वाइट सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा. कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ भी है, कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ भी है. आप सब जानते हैं कि सिल्वर आयन के ऊपर है +1 चार्ज और एजाइड आयन के ऊपर है -1 चार्ज. इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज चार्जेस तो आपके पास सिल्वर एजाइड का फॉर्मूला आ जाएगा AgN3. AgN3 यहाँ है, AgN3 यहाँ है, तो राइट आंसर इज A. Question number 18. Which type of reaction occurs when solid ammonium sulfate is heated in an excess of sodium hydroxide solution? When any ammonium salt react with any alkali under heated condition, then always ammonia gas is given. Number 1. And this reaction is basically an acid-base reaction. अगर आपको याद हो मैंने समझाई थी बात, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, इट इज एन acid-base reaction. मैं भी क्लियर कर देता हूँ. सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और अमोनिया गैस बन रही है. तो जब सॉल्ट वाटर और गैस रिलीज होगी तो एसिड बेस रिएक्शन होता है. वन थिंग. सेकंड थिंग, आप जानते हैं कि ये एल्कली है और आप जानते हैं कि अमोनिया माइंस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है, व्हिच इज व्हाई इट इज एन एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. Catalytic converters are fitted in the exhaust system of many cars. Which gas causes acid rain if it is released into the air? ठीक है. Second is removed from the car exhaust fume by catalytic converter. The right answer is nitrogen dioxide. क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन बनाता है नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड की फॉर्म में और कैटालाइटिक कन्वर्टर से रिमूव भी होता है. बाय द वे ये कैटालाइटिक कन्वर्टर से रिमूव नहीं होता, इसलिए गलत हो गया. ये एसिड रेन कॉज नहीं करता, ये एसिड रेन कॉज नहीं करता, इसलिए ये तीनों गलत हो गए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. Which substance reacts with trichloroethene to give a chiral product? Okay, trichloroethene लिख लेते हैं पहले यहाँ पर. ओके, तो हम ट्राइक्लोरोइथीन को इस तरह से तो लिख सकते हैं. दिस वन. ठीक है, ये ट्राइक्लोरोइथीन हो गया. अब आप इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओ सबसे पहले, तो पाई बॉन्ड हट जाएगा और ब्रोमीन ऐड हो जाएगी एडजेसेंट कार्बन एटम पे. तो एक ब्रोमीन मैंने यहाँ अटैच कर दी और एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर अटैच कर दी. अब आप नोट करें ये आपकी कायरल कार्बन हो गई. ठीक है, आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो राइट आंसर इज ए. ठीक है, इससे आपको कायरल प्रोडक्ट मिल गई. तो वो कह रहे हैं एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वो कह रहे हैं व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन आर एल्केन्स मोस्ट लाइकली टू अंडरगो. दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप जानते हैं एल्केन्स अंडरगोस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन 22. वो कह रहे हैं एन एल्कीन रिएक्ट्स विद hot concentrated acidified potassium magnate 7 to produce a single organic product as shown. ठीक है. What is the structure of the alkene? Okay. Okay. So पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा. हाँ, this is CH3, this is CO, again CH3, CO, CH2. तो आपके पास ये एक CH2 आया है, यहां पर CH2 नहीं है. राइट. मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको. देखो मैं दोबारा से बता देता हूं. मैंने आपको क्लास में पढ़ाते हुए कहा था कि जहां डबल बॉन्डेड C होगा वो कीटोन और जहां डबल बॉन्डेड CH है वहां कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जहां रेड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और जहां डबल बॉन्डेड ब्लैक है वहां पर कीटोन बन रहा होगा. सही है. सेम फॉर एवरीवेयर. ठीक है जी. अब देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ. अलर्ट रहना. दिस इज CH3, दिस इज CH3.
ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन, ये आ गया कीटोन। कीटोन बनने के बाद ये आया CH2, यहाँ पर CH है, इसका मतलब CH2 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये गलत हो गया, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डी पे चलते हैं। ये CH3 है, ये आ गया CH3, ये डबल बॉन्डेड C है तो ये कन्वर्ट हो गया कीटोन में। उसके बाद आपके पास है CH3, तो ये आ गया CH3। ठीक है, फिर उसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, तो ये आ गया CH2, ये आ गया CH2। इसने एक और CH2 लिखा है, यहाँ तो एक और CH2 नहीं है, राइट, which is why B is incorrect also। नेक्स्ट को देख लेते हैं, दिस इज CH3, दिस इज CO, ये भी टैली हो गया, ये भी टैली हो गया। उसके बाद क्या है CH2, CH2 तो नहीं है यहाँ पर, ये गलत हो गया। तो जब A गलत, B गलत, C गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, D। अब D को मैं टैली करके दिखा देता हूँ, दिस इज CH3, ये रहा CH3, दिस इज CO, ये आ गया CO, देन CH, CH3, CH, CH3, CH2, 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 और ये CH किस में कन्वर्ट होगा, COOH। I hope it makes sense to you। Question number 23. A tertiary bromoalkane indicated here by this reacts with aqueous NaOH. The mechanism has the reaction pathway। 2 हमसे ग्राफ मिल रहा है because SN1 reaction always takes place in tertiary alkaline and Y is basically the intermediate which is your tertiary carbocation। तो कह रहा है which point is the diagram is correctly identified। जो Y है वो tertiary carbocation, क्योंकि valley between the 2 humps represents the intermediate, right? And this intermediate should be tertiary carbocation। Right answer is C। Next, bromomethane and chloroethane are added separately to water, hydrolysis reaction occurs। Which compound hydrolysis more rapidly and what is the mechanism? आप जानते हैं कि ये भी हैलोजन अल्केन है, ये भी हैलोजन अल्केन है, both of them are alkyl halides, so alkyl halides undergoes nucleophilic substitution reaction। तो nucleophilic substitution यहाँ भी है, nucleophilic substitution यहाँ भी है। अब जाहिर सी बात है, हमने ये भी आपको बताया हुआ था कि RBr की रिएक्टिविटी RI से कम है और RBr की रिएक्टिविटी RCl से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो RBr is more reactive, तो bromoalkane is more reactive, ये आ गया bromoalkane more reactive, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका B। Question 25, alcohol X is oxidized to form compound Y। The composition of Y is 54.54% carbon, 36.36% oxygen, and 9.10% hydrogen. The MR of Y is 88. What could be the structure of alcohol X? Okay. So बेटा हम क्या करते हैं, हम ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कीटोन में because it is a secondary alcohol। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का अल्कोहल है, तो ये पेंटानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 2 3 4 and this one is 5। ये ब्यूटानॉल है, तो ये ब्यूटानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, और ये पेंटानॉन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CO, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू कीटोन, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय ये एल्डिहाइड भी तो बन सकता है बिकॉज़ इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बताया नहीं है मुझे, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी एल्डिहाइड बन सकता है बिकॉज इसने मुझे बताया नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये ऑब्वियसली कीटोन में कन्वर्ट होगा।
right? Now take out the MR of each compound. Okay. इसका MR निकाल लेते बेटा, 3 + 14 + 28 + 15, जो हो जाएगा बेटा आपके पास 72। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उसका हमें 88 दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं 15 + 28 + 14 + 45, ये हो जाए। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इसका आ रहा है बेटा 102, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड ले लूँ तो फिर क्या होगा, 15 + 28 + 14 + 29, एक मिनट, 15 + 28 + 14 + 13 + 16, ये हो जाएगा बेटा 86। तो ये भी गलत हो जाएगा आपके पास क्योंकि 88 से टैली नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो ये हो जाएगा 15 + 28 + 45 इज गोइंग टू बी 88। इसका आंसर 88 आ रहा है। दिस माइट बी द राइट आंसर। एल्डिहाइड को देख लेते हैं, 15 + 28 + 13 + 16 +, तो ये 72 आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से एक तो करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। और बी को भी देख लेते हैं, 15 + 14 + 28 + 14 + 15 +, सी हो जाएगा बेटा आपके पास 86। तो ऑब्वियसली सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें मेरे पास 88 आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर है सी, ये भी गलत। क्वेश्चन 26, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जी। ये कंपाउंड जी है, इसमें कीटोन है, इसमें एल्डिहाइड है और इसमें एल्कीन भी है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्कीन। ये आपका क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है बेटा आपके पास, एल्डिहाइड। अब वी हैव 3 different functional groups in this compound. The question says what is the product of the reaction between compound Z and an excess of NaBH4। आप जानते हैं कि NaBH4 का एल्कीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, तो एल्कीन विल रिमेन एज इट इज। तो वो तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गई जिन्होंने एल्कीन को सैचुरेट कर दिया। तो बी भी गलत और सी भी गलत। और कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड डी क्योंकि उसमें एल्कीन जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ NaBH4 की वजह से। अब प्रॉब्लम ये, आप जानते हैं कि जब हम कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कहां पर बना है, सेकेंडरी अल्कोहल डी में तो नहीं बना, ये तो कीटोन ही रहा। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। चेक करें, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये जो एल्डिहाइड है आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, और ये कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question 27, compound Q shows the following reaction. Gives an orange precipitate to 240 pH. This means it is either ketone or aldehyde. Gives red brown precipitate with failing reagent. Confirm हो गया कि it is an aldehyde. यहाँ लिख देते हैं aldehyde और कीटोन, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं gives pale yellow precipitate with alkaline aquacidine, इसका मतलब CH3CO group और CH3CHOH group present. What could be the identity Q? The right answer is A, because ethanol is the only aldehyde which has CH3CO group, and this group shows hydroform का positive test. Also failing reagent, also 240 pH. All right. आप जानते हैं 240 pH का टेस्ट किसमें नहीं आएगा पॉजिटिव, आप जानते हैं इसमें फैलिंग टेस्ट का नहीं आएगा, आप जानते हैं ये आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं दे सकता, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 28,
tartaric acid is found in many plants. A sample of tartaric acid reacts with an excess of lithium aluminum hydride to form an organic product J. पहली बात कि excess amount है, दूसरी बात strong reducing agent है. इसका मतलब ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, they will turn into primary alcohols straight away, right? और इस पे कोई change नहीं आएगा, ये secondary alcohols as it is रहेंगे. वो कह रहे हैं what happens when NaOH is added to separate sample of tartaric acid and J. आप जानते हैं जब आपके पास रिडक्शन हो जाएगी और ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा, आई मीन ये क्या हो जाएगा आपके पास अल्कोहल. सो अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, राइट? जब अल्कोहल्स न्यूट्रल होंगे तो ऑब्वियसली वो NaOH से तो रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन कर लेंगे और जब ये NaOH से रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर इज B. Only tartaric acid reacts with NaOH, not an alcohol, because alcohols are neutral, they cannot react. याद रखिएगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे. लिख देता हूं यहां पर. Will turn to primary alcohol. सही. Okay, next question number 29. When CH2OH, CH double bond CH is warmed with a little concentrated sulfuric acid, a cyclic compound is formed. पहली बात इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी बात इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है. तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे, बिकॉज concentrated sulfuric acid acts as a catalyst here. ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये बेसिकली एस्टर है. सही है. और ये क्या है आपके पास? कैटलिस्ट. तो बेटा हम इसको लिख के दिखा देते हैं आपको थोड़ा तमीज से. ये है आपके पास COOH, CH double bond CH, then CH2 and then OH. अब क्या होगा? मैंने H2SO4 से रिएक्शन करवाना है और मैं इसको वार्म भी कर रहा हूं. तो यहां से OH और यहां से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. अब जो कुछ रह गया उसको लिख देते हैं. CO CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये ऑक्सीजन और ये. अब इसको बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्केलेटल फॉर्म में. सही है. ये ऑक्सीजन आ जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा आपके पास. तो ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है आपके पास? लेकिन ये ऑप्शन गलत इसलिए क्योंकि इसमें 2 CH2 आ गए, which is not possible. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ एक ही CH2 है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा. यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ CH2 है, राइट? यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ CH कर दिया है, तो ये भी गलत. ये भी गलत क्योंकि 2 एस्टर हो गए. 2 एस्टर तो नहीं है, एस्टर तो मेरे पास एक ही बना है. तो राइट आंसर इज C. The infrared spectrum of compound P is shown. अब आप नोट करें, ये आपके पास एक पीक है, एक पीक ये है. ये जो पीक है ये OH ऑफ अल्कोहल 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रही है. दिस इज CH 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आ रही है, राइट? तो ऑप्शन ए रॉन्ग क्योंकि कार्बोनाइल की पीक एब्सेंट है. CO पीक एब्सेंट. प्रोपेनॉल रॉन्ग, सेम रीजन, कार्बोनाइल पीक एब्सेंट. फिर ऑप्शन सी रॉन्ग बिकॉज COOH peak absent.
तो राइट आंसर इज डी बिकॉज अल्कोहल की पीक इज प्रेजेंट. OH peak present. OH peak present. Next, 31. A particular atom of germanium has a nucleon number of 70. Which statement about germanium atoms are correct? अब भाई germanium का atomic number है 32 और इसका mass is 70. इसका मतलब इसमें 30 protons हैं, इसका मतलब इसमें 30 electrons हैं, and obviously अगर मैं 70 minus 32 करूँ तो मेरे पास न्यूट्रॉन्स 38 हो जाएंगे. सही है, वन बाय वन पढ़ते हैं. ये आपके पास है सेलेनियम 2+, इसका एटॉमिक नंबर 34 है, 79 इसका एटॉमिक मास है. इसमें 34 प्रोटॉन्स हैं और 2+ 34 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, बट 32+ चार्ज की वजह से 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो सही है. This is 32 protons and 32 electrons. अब बेटा 79 minus 34 करेंगे तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 32 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. तो वो आपसे कह रहे हैं इट हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दिस. बिल्कुल सही बात है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया. उसके बाद वो जिंक की बात कर रहे हैं. जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, मास 68 है, इसमें 30 प्रोटॉन्स हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 68 माइनस 30 करूंगा तो 38 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे. तो वो कह रहे हैं इट हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज दिस. तो सही बात है, इन दोनों में 38 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. फिर आपके पास है GD, एटॉमिक नंबर 64, मास 160. आप जानते हैं इसका प्रोटॉन 64 होंगे, उसमें 64 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 160 माइनस 64, 160 माइनस 64, 160 माइनस 64, 160 माइनस 64 is going to be 96 न्यूट्रॉन है. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. It has half as many proton as an atom of this. तो जाहिर सी बात है, अगर मैं GD के 64 प्रोटॉन्स को हाफ कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? मेरे पास 32 प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो 32 प्रोटॉन्स इसमें है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हाफ कर रहा हूं तो 32 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, व्हिच इज राइट. तो राइट आंसर इज A. The first ionization energy of chlorine is greater than that of sulfur. Across the period ionization energy increase होती है. Obviously क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. सल्फर का न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. ये भी जहन में रखो कि सल्फर के अंदर स्पिन रिपल्जन होती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है. आगे चलते हैं. क्लोरीन हैज मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस देन सल्फर डज. बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है. हायर न्यूक्लियर चार्ज हो गया अगर प्रोटॉन ज्यादा है न्यूक्लियस में. क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग देन सल्फर एटम. अच्छा, क्योंकि ये अक्रॉस द पीरियड है ट्रेंड, तो अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग रिमेन सेम, तो ग्रेटर तो नहीं हो सकता. शील्डिंग रिमेन सेम, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर इज डी. हम इस स्टेटमेंट, ये चले हमें अगर याद नहीं है, ये स्टेटमेंट याद नहीं है हमें, तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी बता देते हैं हम आपको. भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन कर लें इसकी. ये जगह नेऑन, अच्छा नेऑन को भी छोड़ें, इसको दोबारा से करते हैं. ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. तो ये उसके इनर शेल्स हैं. 12 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शील्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, अब हम सल्फर की बात कर लेते हैं. सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. आप देखें ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी भी 12 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और वो शील्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं.
आर इन्वॉल्व इन शील्डिंग। तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना, इसका मतलब शील्डिंग भी सेम होगी, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया था बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया ट्रेंड में कि शील्डिंग रिमेन्स सेम। राइट आंसर इज डी फॉर 32। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम बात करेंगे, वो कह रहे हैं आपसे liquid X and Y do not react with one another, they have identical boiling points। ठीक है, when particular volume of X is shaken with similar volume of Y, they form a liquid mixture Z। वो कह रहे हैं the average intermolecular forces in liquid Z are stronger than the average of the forces in X and forces in Y। What deductions from this information are correct? ठीक है, बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है ना, देखिए द मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्सोथर्मिक, सही तो है। एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिक्सचर जी। तो जब दो रिएक्टेंट्स आप इसके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, the vapor pressure of liquid Z will be less than that of either liquid X or liquid Y at the same temperature। बेटा जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेपर प्रेशर is inversely proportional to intermolecular forces। उसने कहा intermolecular forces in liquid Z are stronger। जब stronger होगा तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सही लिखा भाई ये भी ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, the boiling point of liquid Z will be lower than that of either liquid X or liquid Y at the same pressure। उसने कहा है intermolecular forces in liquid Z are stronger than X and Y। इसका मतलब liquid Z का boiling point जो है वो हायर होना चाहिए, should be higher। due to strong intermolecular forces। ये स्टेटमेंट गलत हो गया and therefore B is going to be the right answer। फिर वो आपके साथ बात कर रहे हैं, the stoichiometry of a catalyzed reaction is shown by the equation below। ठीक है, two experiments are carried out in which the amount of R is measured, the results are shown in this diagram। आप जानते हैं कि इसका rate of reaction higher, rate of reaction is higher due to steeper curve। ठीक है, और इसका rate of reaction is lower due to less steeper curve। ठीक है, पहली तो इन्फॉर्मेशन मुझे ये पता चल गई। और y एक्सिस पे अमाउंट ऑफ आर है और x एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, वो कह रहे हैं which changes in the conditions could explain the result shown। A lower pressure was used in experiment 2। देखो यहाँ पर कितने मोल्स हैं 2, यहाँ पर कितने मोल्स हैं 1। तो अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, यानी रिएक्शन फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सही है, जब रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो जाहिर सी बात है ये स्केच मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आर कम होगा, तो यहाँ पर आर कम है ना बेटा, सही है। तो वो कह रहे हैं a different catalyst was used in experiment 2। that's right, because इसका रेट ज्यादा है, इसका रेट कम है, इसका मतलब डिफरेंट कैटलिस्ट यूज हुआ होगा।
सेकंड भी ठीक है। प्रोडक्ट S was continuously removed from the reaction vessel in experiment 2। बेटा अगर मैं प्रोडक्ट S यहाँ से निकाल दूं तो प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट कम होंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो R क्या है, बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2 में तो R कम है एक्सपेरिमेंट 1 से, इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35, chloride ions are oxidized when concentrated sulfuric acid is added to sodium chloride, which is wrong because chloride ions are weaker reducing agent. Concentrated H2SO4 cannot oxidize chloride into chlorine. The पहला statement wrong. Second पढ़ते हैं, a disproportionation reaction takes place when chlorine is added to cold NaOH। बिल्कुल सही बात है, इसको हम disproportionation reaction बोलते हैं। फिर वो कह रहे हैं an acidic solution forms when chlorine is added to water। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि जब वाटर को क्लोरीन के साथ मिक्स किया जाता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, HCl भी बनता है, HClO भी बनता है। इस HCl की फॉर्मेशन की वजह से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव whereas ऑक्सीजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर रिएक्टिव, which statement helps to explain this difference। वो कह रहे हैं the two nitrogen atom in N2 molecule are held together by very strong triple bond। That's right, बिल्कुल सही बात है। फिर वो कह रहे हैं the triple bond between two nitrogen atom is not polar। सही बात है बिल्कुल। the bond in O2 and Cl2 are polar, ये गलत बात है क्योंकि O2 और Cl2 दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है। जब डिफरेंस जीरो होता है तो हमने आपको बताया था नॉन पोलर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया एंड देयरफॉर आंसर इज डी। the structure of टिग्लिक एसिड is this। टिग्लिक एसिड की खास बात ये कि इसमें एक एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो कहना है which statement about the properties of one molecule of this acid are correct। it contain two pi bonds। pi bonds तो टू होंगे। मैं स्ट्रक्चर ओपन कर देता हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ये CH3 आ गया, ये CO और ये OH, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड आपका ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड आपका ये रहा, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट कंटेन 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। गाइस ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ये 2 लोन पेयर्स आ गई। इस ऑक्सीजन की भी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, ये 2 लोन पेयर्स आ गई। तो टोटल लोन पेयर्स अराउंड ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 4। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इट हैज ऑल ऑफ इट्स एटम इन द सेम प्लेन। रॉन्ग, इसलिए क्योंकि ये टेट्राहीड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सेम प्लेन पे नहीं होगा, ठीक है। ये भी टेट्राहीड्रल है और ये कार्बन भी टेट्राहीड्रल है। तो राइट आंसर इज बी। Which compounds on heating with an excess of concentrated sulfuric acid produce only one product with molecular formula C7H10। वो कह रहे हैं only one product with molecular formula। और आप नोट करें on heating with excess H2SO4, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज सारे के सारे ये अल्कोहल्स हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसका मतलब डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। सही है, ओके। वी नीड मोर वर्किंग। तो हम एक पेज ले लेते हैं जिसपे हम इसका काम कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले वाले कंपाउंड की बात करते हैं। ये OH है और ये OH। मैंने क्लास में समझाया था कि OH को रिमूव कर दो और उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आ दो। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, दैट्स व्हाट वी हैव लर्न इन द क्लास। तो एडजेसेंट कार्बन एटम ये भी है, एडजेसेंट कार्बन एटम ये भी है, सही है। तो अगर मैं इस एडजेसेंट कार्बन एटम से डबल बॉन्ड बना रहा हूं तो ये बन जाएगा, और अगर मैं यहां से बनाऊंगा और अगर मैं यहां से बना रहा हूं तो ये यहां बन जाएगा।
और एक चीज और देखिए, अगर मैं इस कार्बन एटम से ड्रॉ करूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये एज इट इज जाएगा। सही है, तो अब नोट करो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 4 5 में, ये 1, ये 2, सॉरी 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर 1 2 3 1 2 4 5 है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर भी 1 2 4 5 है। इसका मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड है, इसका मतलब ये एक ही प्रोडक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया हमारा, सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड को डील करते हैं। ये आपका है OH और ये भी आपका OH। अकॉर्डिंग टू द लेक्चर OH रिमूव कर दो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम ये है कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। तो एडजेसेंट कार्बन एटम आपके पास ये है, तो अगर मैं इससे एल्कीन बनाऊंगा तो ये बनेगी और यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि मैं यहां से शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर लूं, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक यहाँ बन जाएगा। सही है ना? मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गोना एग्जिस्ट क्योंकि डबल बॉन्ड आमने सामने आएंगे। इसका मतलब इसका मजीद कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं, यहाँ से एक ही प्रोडक्ट बन रही है, इसके अलावा कोई और नहीं बन सकती। बस दैट्स ट्रू, यहाँ से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी, इसके अलावा नहीं बन सकती। इसका मतलब प्रोडक्ट सिर्फ यही आएगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये भी ठीक है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मिल रही है हमें। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, ये OH है और ये OH है। OH को हटा दीजिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कीजिए, ये आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम देखते हैं। तो पहला एडजेसेंट कार्बन एटम तो ये है आपके पास, राइट। तो मैं इससे एल्कीन बना देता हूँ, ये बन गई एल्कीन और डबल बॉन्ड यहाँ भी बन जाएगा। सही है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से हो जाए। अगर यहाँ से होगा तो एल्कीन ये बनेगी। राइट, तो जरा देखिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, डबल बॉन्ड जो है वो 1 2 4 5 पे आ रहा है। यहाँ देख लो 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 पे आ रहा है। ये डिफरेंट एल्कीन्स हैं दोनों, वो कह रहा है ओनली वन। सही है, इसका मतलब ये ठीक है, ये गलत है, राइट आंसर इज बी। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39, वो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, ऑब्वियसली साइनोहाइड्रिन विल फॉर्म, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? साइनाइड एंड एक्स एज अ कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये पोटेशियम साइनाइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। फिर वो कह रहे हैं दिस इज एन एडिशन रिएक्शन, इट इज आल्सो राइट बिकॉज
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। द इंटरमीडिएट बिहेव्स एज अ बेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। इफ यू नो द मैकेनिज्म, ये बनता है ना आपके पास प्रोडक्ट। ये मैं दिखा देता हूँ आपको बना के, CH3 CO CH3 प्लस HCN, ये आपका बनेगा CH3 CO नेगेटिव CH3 CN। अब आपके पास H प्लस आयन भी होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए एज अ बेस बिहेव कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये साइनाइड है लोन पेयर के साथ, और ये HCN है। तो मैंने क्लास में करवाया, मैं वो बता देता हूँ। ये यहाँ से साइनाइड निकल जाएगा, which will act as a catalyst। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40, वो आपसे कह रहे हैं which compound produces 3 different organic products when hydrolyzed। एस्टर है, एस्टर को हाइड्रोलाइज करना है, यहाँ से हाइड्रोलाइज करो, यहाँ से हाइड्रोलाइज करो। ठीक है, तो पहली प्रोडक्ट तो आपकी ये हो गई, which is CH3 COOH प्लस, दूसरी प्रोडक्ट आपकी ये हो गई, ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, विल टर्न टू OH, फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास अगेन CH2 है, एंड CO विल गेट OH ऑफ वाटर, तो ये COOH हो गया, प्लस ऑक्सीजन विल गेट हाइड्रोजन ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH। तो आपके पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हुई, ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, हाइड्रोलिसिस करें इसकी, कौन यहाँ से ब्रेक करो, कौन यहाँ से ब्रेक करो, तो आप जानते हो कि ये भी अल्कोहल होगा और ये भी अल्कोहल होगा, एक ही कार्बन का अल्कोहल है, तो इसका मतलब आपको मेथनॉल मिल रहा है। ये CO will get OH of water will turn to COOH, फिर उसके बाद CH3 है, फिर CH2 है, and CO will get OH of water will turn to COOH। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और यहाँ 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, राइट, 3, और यहाँ 2 प्रोडक्ट्स, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। ये गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।